नेहा बजाज and you're watching me on Zoom Live Show, entertainment का ultimate dose. Well, Bollywood से जुड़ी सभी updates, celebrities के fashion, fitness और style secrets, you'll get to see everything on the Zoom Live Show. And before we begin with top stories of the day, Zoom के YouTube channel को like, share and subscribe करना ना भूलें and do hit the bell icon to never miss an update. तो चलिए टॉप स्टोरीज में सबसे पहले बात करते हैं ऋतिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान की, जो कि बॉलीवुड के एक जमाने में वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल्स में माने जाते थे। भले ही आज ऋतिक और सुजैन अलग हो गए हों और अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ मूव ऑन भी हो गए हों, लेकिन हाँ, इनके डिवोर्स पर ऋतिक सुजैन के फैंस को दुख बहुत हुआ था। और अब ऋतिक के फादर यानी कि राकेश रोशन ने दोनों के डिवोर्स पर की है खुलकर बात और ये भी शेयर किया है कि आखिर दोनों का डिवोर्स क्यों हुआ था और क्या कहा राकेश रोशन ने, आइए आपको बताते हैं। राकेश रोशन emphasized how Hrithik and Suzanne's relationship fell apart due to a misunderstanding. He said, whatever has happened between the couple. For me, Suzanne is Suzanne. They were the ones who fell in love. They were the ones who had a misunderstanding and they have to solve it. For us, she came to our house and she's still a member of the house. In the same conversation, Rakesh also said whether Hrithik talks about his personal life with his father. Hrithik and my daughter are little scared of me. I don't know, maybe because I'm a well-disciplined man. I'm not a short-tempered person. I'm not a person who will scold anybody, but I'm very disciplined. When they were little, they would not talk to me openly. Now we are like friends at home. राकेश रोशन के स्टेटमेंट से एक बात तो साफ है कि ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स उनकी नजर में एक गलत फहमी की वजह से हुआ था, लेकिन वो सुजैन को आज भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। आपको बता दें, ऋतिक एंड सुजैन गॉट मैरिड इन द ईयर 2000 और शादी के 13 साल बाद दोनों ने अपना सेपरेशन किया था अनाउंस। हालांकि आज दोनों आफ्टर डिवोर्स भी करते हैं कॉर्डियल इक्वेशन शेयर, जहां पर ऋतिक रोशन इज डेटिंग सबा आजाद, तो वहीं सुजैन खान भी बहुत लवी डवी पिक्चर्स शेयर करती रहती हैं बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी के साथ। दोनों भले ही मूव ऑन कर गए हों, लेकिन शायद राकेश रोशन के मन में कसक आज भी है। तो चलिए टॉप स्टोरीज में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ फेमस डायलॉग्स की। ये बाबूराव का स्टाइल है। देवी प्रसाद तो नहीं है। ये डायलॉग सुनकर आपको भी याद आ गई ना फिल्म हेरा फेरी की? यस। और वहीं हेरा फेरी के फैंस के लिए खुशखबरी, क्योंकि बनने वाली है हेरा फेरी 3 भी और प्रियदर्शन के साथ रियूनाइट करने वाले हैं अक्षय कुमार, साथ साथ सुनील शेट्टी और परेश रावल, यानी कि ये पूरा ट्रियो जो कि हमें हेरा फेरी फिल्म में नजर आया था और साथ साथ इनकी कॉमिक टाइमिंग भी बड़ी फेमस हुई थी। अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन को किया हैप्पी बर्थडे विश और इन रिस्पॉन्स प्रियदर्शन ने भी दिया एक बहुत ही अच्छा जवाब और अब फैंस को भी पूरी तरीके से पता चल गया कि हेरा फेरी 3 बनने वाली है। और क्या है इसके बारे में और अपडेट्स, आइए आपको बताते हैं। On Thursday, January 30, director Priyadarshan reacted to Akshay Kumar's birthday wish by confirming Hera Fairy 3. Akshay ने प्रियदर्शन के लिए लिखा, Happy birthday Priyan sir. What better way to celebrate than by spending the day on a haunted set surrounded by ghosts, both real and unpaid extras. Thank you for being a mentor and the only person who can make yours look like a masterpiece. May your day be filled with fewer. और इसी के जवाब में प्रियदर्शन ने लिखा, Thank you so much for your wishes, Akshay. In return, I would like to give you a gift. I'm willing to do Hera Fairy 3. Are you ready? Akshay Kumar, Sunil Shetty and Sir Paresh Rawal. While Akshay Kumar, Sunil Shetty and Paresh Rawal delightfully agreed to do the film, this brought a wave of excitement amongst fans as well. जहां पर फैंस ने लिखा, A fan wrote Hera Fairy 3 finally happening with the original star cast and added Johnny Lever's popular meme from फिर हेरा फेरी, अब मजा आएगा ना बिडू. Another fan expressed pure nostalgia is back finally, while a third fan stated it is Priyadarshan's world and we are just living in it. Happy birthday Priyadarshan sir and thank you for the return gift. In addition to this, a fan added another iconic scene of Paresh Rawal from Hera Fairy and remarked, Bollywood is going to be so back with Hera Fairy 3, I just know it. ये सब कमेंट्स सुनकर आपको भी लग गया होगा कि नेटिजन्स तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल अक्षय कुमार प्रियदर्शन के साथ फिल्म भूत बंगला की शूटिंग में बिजी हैं। तो चलिए टॉप स्टोरीज में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रैपर सिंगर रफ्तार की, जिन्होंने कर ली है शादी और उनकी कुछ पिक्चर्स हो रही हैं वायरल, जिन्हें फैंस कर रहे हैं काफी पसंद। आपको बता दें कि रफ्तार की ये दूसरी शादी है और इस शादी के बारे में और अपडेट्स जानने हैं, आइए आपको बताते हैं। सिंगर एंड रैपर रफ्तार tied the knot with stylist Manraj Javanda in an intimate ceremony.
Rapper Raftaar, originally named Dylan Nair, tied the knot with fashion stylist and actress Manraj Javanda on Friday, January 31st, in an intimate ceremony attended by close friends and family. A picture from their traditional wedding has now emerged on social media, and previously Raftaar was married to Komal Vohra, but the two parted ways in 2020. Well, a fan shared a picture of Raftaar and Manraj's wedding on social media, capturing the couple lovingly gaze at each other while surrounded by their loved ones. The duo tied the knot in a beautiful traditional South Indian ceremony. तो वहीं रफ्तार की शादी की बाकी सेरेमनीज की फोटोज भी हो रही हैं वायरल। वेल आपको बता दें कि रफ्तार वाज मैरिड टू कोमल वोहरा और उन्होंने 2016 में उनसे शादी की थी। हालांकि 2022 जून में उनके डिवोर्स की खबरें हुई सर्कुलेट। वेल बिफोर देयर वेडिंग रफ्तार एंड कोमल वर इन अ रिलेशनशिप फॉर 5 years and later tied the knot in a lavish ceremony. Raftaar, known for his high energy rap style, began his career with the underground hip hop group Mafia Mundir before making a mark as a solo artist. He gained recognition with hits like Swag Mera Desi, Dhakar from Dangal. तो चलिए टॉप स्टोरीज में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक्ट्रेस खुशी कपूर की। तो क्या खुशी कपूर ने वेदांग रैना के साथ अपना रिलेशनशिप कर दिया है कंफर्म? वेल पिछले कुछ समय से ऐसे रूमर्स थे कि खुशी कपूर एंड वेदांग रैना आर डेटिंग और उन्हें कई बार एक साथ स्पॉट भी किया गया। हालांकि दोनों ने कभी भी इस चीज को कंफर्म नहीं किया। और अब आपको बता दें, खुशी कपूर आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ अगले हफ्ते फिल्म लवियापा में आने वाली है नजर। और साथ साथ अब खुशी कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की एक रील जिसमें कमेंट के जरिए दरअसल ये तो कंफर्म हो गया है कि हाँ, खुशी कपूर का बॉयफ्रेंड तो जरूर है। और क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। On January 29, 2025, Khushi Kapoor took to Instagram and shared an adorable reel with her pet dogs on the song Lavyapa Ho Gaya from the film Lavyapa. She was seen playing with her furry friends. The caption of the post read, "My father was so busy, so I had to recruit the doggies for a little promo video for Lavyapa in cinema 7th February." Well, in the comment section, Yuktam Khosla, who is also a part of Lavyapa, praised the reel by saying, "Arey, so cute, yeah, best one yet." The film's director, Advait Chandan, responded to him, "Yuktam Khosla, iska boyfriend hai already. She already has a boyfriend," presumably referring to Vedang Raina. Advait also told Yuktam, "Film ke character se bahar nikal." The actor playfully replied, "What the?" वेल इसी के अलावा खुशी कपूर की बहन जानवी कपूर ने भी इस पोस्ट पर किया रिएक्ट और लिखा, "दिस इज द बेस्ट थिंग एवर." तो वहीं अनन्या पांडे, वेदांग रैना और अर्जुन कपूर के अलावा भूमि पेडनेकर ने भी इस पोस्ट को लाइक किया। तो वहीं फैंस ने लिखा, "ओह दिस इज टू क्यूट," व्हाइल अनदर फैन रोट, "दिस इज माय फेवरेट वीडियो ऑन द इंटरनेट टुडे," एंड मेनी अदर्स कन्वेड देयर लव विद रेड हार्ट एंड हार्ट आई इमोटिकॉन्स। वेल एक बात तो जरूर है कि खुशी कपूर को अपने बिग स्क्रीन डेब्यू के लिए पूरे बॉलीवुड का सपोर्ट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस पोस्ट के बाद और कमेंट्स को पढ़ने के बाद हमें भी यही लग रहा है कि यस, खुशी कपूर इज डेफिनेटली डेटिंग वेदांग रैना। और हम तो यही वेट कर रहे हैं कि खुशी कपूर कब खुद से इस बात को ऑफिशियली करते हैं कंफर्म। मीनवाइल 7 फरवरी को खुशी की फिल्म लव्यापा ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो चलिए टॉप स्टोरी में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शाहरुख खान और विराट कोहली की, जिनकी हाल ही में हुई है मुलाकात और अब फैंस उनकी पिक्चर्स भी डिमांड कर रहे हैं। और क्रिकेट और बॉलीवुड के ये दो बड़े सेलिब्रिटीज कब मिले, कहां मिले और क्या अपडेट्स हैं, आइए आपको बताते हैं। Well, Shah Rukh Khan was recently in Dubai and videos of the superstar flooded the internet. Now a new video of the superstar surfaced as he boarded the plane, and it has been reported that SRK met Virat Kohli, who is currently in Delhi for the Ranji Trophy, before boarding the plane. A video has been posted by a PAP page in which Shah Rukh Khan can be seen getting on his charter plane after stepping out of the car, and according to the post, SRK was snapped after he met with Virat Kohli. The superstar exuded his timeless charm as he looked towards the camera before leaving. Well, किंग खान ने पहनी थी ब्लैक टी शर्ट पेयर्ड विद ग्रे जैकेट और साथ साथ मैचिंग डेनिम और वाइट स्नीकर्स भी, और साथ साथ उन्होंने एक ब्लैक जैकेट हाथ में भी पकड़ी हुई थी। Well, जैसे ये वीडियो हुआ वायरल तो उसके बाद फैंस ने कर दिए कमेंट्स, जहां पर उन्होंने लिखा, "To King," and another asking any pics of them together. A third fan stated, "would love to have the pic of them together." Kings, while many others were interested in knowing the special reason behind their meeting. Well, आपको बता दें विराट कोहली वापस आए हैं इंडिया फॉर द टॉप डोमेस्टिक टूर्नामेंट द रणजी ट्रॉफी 12 साल के बाद।
तो वहीं शाहरुख खान भी हमेशा क्रिकेटर्स से करते हैं बहुत ही अच्छे टर्म्स मेंटेन, और शायद इसलिए अब फैंस भी डिमांड कर रहे हैं दोनों की पिक्चर्स की। वर्क फ्रंट की बात करें तो SRK फिलहाल डॉटर सुहाना खान के साथ अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म किंग में है काफी बिजी। तो चलिए टॉप स्टोरीज के बाद अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है पैब। और आइए देखते हैं कि जूम के फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के कैमरास में आज कौन से सेलिब्रिटीज हुए हैं कैप्चर और किसका लुक रहा है सुपर डुपर हिट। साइड हो जाओ थोड़ा सा। पीछा ना, हाथ छोड़ना। अरे पीछू कसम पूरा फंस गया। सर यस 2 steps बैक। बस 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 सर यहाँ पर देखिए, लगा सर यहाँ पर। सर नाइस लुक। सर लुक दिस साइड नाउ। सर सेंटर सेंटर। सर नाइस लुक सर। सर यहाँ पर सर लगा सर यहाँ पर देखिए। चेतू सर। सर यहाँ पर सर यहाँ पर देखिए सेंटर में यहाँ पर। चैतन्य सर। वेट। हेलो ऋषभ भैया। थाम सर मटन मारो। तो चलिए पैब्ड के बाद अब वक्त हो गया हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है ग्लैम अप। और आज ग्लैम अप में हमारे साथ जुड़ रही हैं डाकू महाराज की लीड एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल, जो हमसे शेयर कर रही हैं अपने स्किन केयर सीक्रेट्स और हेयर केयर सीक्रेट्स। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन तो मेरा ऐसे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आई जस्ट वॉश माई फेस विथ अ फेस वॉश and then actually I ice my face. I ice my face every day and I apply a really good moisturizing cream and then I apply sunscreen over it to protect my skin. Skincare routine at night is also very simple. I do cleansing, toning and moisturizing. Obviously because it's night so I don't need sunscreen. Definitely BB cream because I feel it gives you an instant glow. Then brow filler because I love shaping my eyebrows. Has to be a nice tinted lip balm. I feel it's less but it's enough for me. A mascara because it instantly opens up your eyes. And blush. So these 5. Actually, I was never a hair care girl at all till last year. मतलब last to last year. Last year से मैंने थोड़ी ऑयलिंग शुरू कर दी है, तो मुझे लगता है ऑयलिंग मुझे बहुत हेल्प करती है। और घर में मॉम मुझे ना कभी कभी वो एक हेयर के मास्क बना के देती हैं। तो बेसिकली ऑयलिंग एंड हेयर मास्क मैं ये 2 चीज़ें करना शुरू कर चुकी हूँ। नहीं यार, मैंने तो अपना खुद का देखा है। मैंने खुद एक बार मतलब प्रॉपर मेकअप थोड़ा एक्सेसिव हो गया था। हम एक अवार्ड फंक्शन में थे दुबई में और दुबई की मेकअप आर्टिस्ट आई थी और वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ना वो मेकअप। तो मेरी ऐसी पर्पल डीप पर्पल टाइप की गाउन थी, बहुत ही स्टनिंग फ्रॉम अ रियली बिग डिज़ाइनर एंड शी वाज लाइक हम इसी कलर का लिप्स करेंगे। तो मैं थोड़ी बच्ची सी थी, नई सी थी, तो मतलब यू डोंट गिव देम सच अ डार्क लिप कलर। तो मैंने डार्क पर्पल लिप कलर लगा के अवार्ड फंक्शन के लिए गई थी। सो आई फील लाइक मेकअप फोपा तो मुझसे खुद ही हुआ है। तो आई रियली लुक बैक एट दैट अवार्ड फंक्शन एंड लाव कि वाओ आई वाज सो क्यूट। किसी ने बोला पर्पल लिप्स पहन लो, तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो मैं लगाती हूँ, मैं ना एक्चुअली फेस पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, पर बचपन में हमने वो लगाया था ना बेसन एंड दही एंड हनी,
That is something that used to work really well for me, that besan ka uptan type ka. And the other thing that I do, which I don't think can be called skincare, but I genuinely love icing my face, क्योंकि ice भी natural ingredient होता है ना, तो I feel like that's a lovely hack to instantly add that glow and tightness to your face. Perfect way to remove makeup is to use a really nice makeup remover with probably as less chemicals as you possibly can get, and something that suits you. So use a really nice eye makeup remover which is maybe oil based, because उससे सारा mascara सब बहुत अच्छे से निकल जाता है. And for the face, use a very gentle sort of a micellar water kind of a makeup remover, and just remove it very gently till the last cotton swab, क्योंकि थोड़ा भी मेकअप मुझे नहीं लगता कि फेस में रहना चाहिए before you go to sleep. So nicely remove it with all your makeup removers, wash your face, moisturize, and then only you're good to go to bed. Well, that's it for today. I hope आपको आज के Zoom Live Show के सभी segments आए होंगे बेहद पसंद. और इसी के साथ साथ Zoom के YouTube चैनल को like, share and subscribe करना ना भूलें. And do hit the bell icon to never miss an update. Well, this is me, Neha Bajaj, signing off, and I'll see you in another episode of Zoom Live Show, entertainment ka ultimate dose.